I hope the screen is visible, right? Is it? Yes, students. So yesterday we started with the unit number 4, right? Your network layer provide communication between what entities? Yes, students. Am I Host to audible? host. Yes, very good. Host to host. And link layer was providing communication between Link layer to link. link 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 payment. to link or hop to Yes. hop, right? Okay. Network layer was decomposed into two parts, and those parts are Data plane and control plane. very good. डेटा प्लेन एक्चुअली उसके अंदर हम किस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, याद है ना? वो बाइफर्केशन डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था राउटिंग एल्गोरिथम के. चलिए, अब याद आ रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन? यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर कंट्रोल प्लेन? Control plane would basically provide the centralized control over all the routers connected into your network, such that the routing information is supposed to be maintained, right? Say for example, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जितने भी routers हैं उसमें ultimately जो implementation हुआ है that is into two parts. First is data plane and second is control plane. Control plane is mostly implemented using a software, right? Here you can see if you are not using routing algorithm directly, in that case you might have certain centralized controller, and those controller would be in turn interacting with your controlling agents that is located into your separate router, right? And your data plane would contain the forwarding table. Each of the forwarding table for separate router is supposed to be stored in your data plane, right? So whenever any data is arriving at your router would supposed to check the few values of your fields from the header of your datagram, and based on that value your first router is supposed to identify the next link through which it can send the datagram, right? Okay. There are two basic functions of your network layer: forwarding and routing. What is forwarding? Yes, what is forwarding? To move data from one router to another. एग्जैक्टली राउटर टू राउटर नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोल सकते हैं कि आपके पास एक राउटर है, उसके दो पोर्ट होने वाले हैं, आपको पता है, राइट? दो इंटरफेस है उसके, एक इनपुट इंटरफेस, एक आउटपुट इंटरफेस है, ठीक है? अब इनपुट इंटरफेस जो भी इनपुट ले रहा है वो एज एन आउटपुट कहाँ पे जाना चाहिए, डेस्टिनेशन जो है वो राउटर के कौन से लिंक से कनेक्टेड है, बिकॉज आपको पता है कि राउटर के मल्टीपल आउटपुट इंटरफेस हो सकते हैं, तो कौन सा इंटरफेस फॉलो करने से आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं और अल्टीमेटली आपका डेटाग्राम फ्रॉम इनपुट पोर्ट टू डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है, दैट इज टू बी डिटरमाइंड, ठीक है? सो दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग द पैकेट फ्रॉम राउटर्स इनपुट to the appropriate router's output is known as forwarding, right? Okay, the forwarding is implemented in your hardware while your routing is implemented in your software. Okay, what is routing? What is routing? See, these were very basic functions. We always need to remember this. Fine, इसमें कोई भी problem नहीं होनी चाहिए. आज पता नहीं क्यों सब एनर्जी लो है, सबकी आंसर नहीं दे रहे हैं आज सब, क्या हुआ?
नहीं समझ में आया कल कि नया यूनिट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यस एवरीवन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि मैंने डिजाइन के बारे में भी पूछा तब भी कोई आंसर नहीं कर रहा है, क्या हुआ? Otherwise, your class seems to be quite a interactive class. Am I audible first of all? Yes, Turin? Then what is happening? Why you are having such low energy? कोई भी आंसर नहीं कर रहा है। अदरवाइज आप तो क्विक रिप्लाई करते ही हो हर बार। और हमारा ट्रेडिशन तो यही है कि हम पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं, ताकि आप पिछला कंटेंट जो है उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी को मेंटेन कर पाए, राइट? तो रिवीजन सेशन तो हमारा काफी काफी क्विक होता है। आज क्या हो रहा है? उसमें भी कोई आंसर नहीं कर रहे हैं। See, if you have any problem, you can discuss with me freely. Fine. समझ में नहीं आ रहा है, नया यूनिट है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? स्पीड ज्यादा है? प्रॉब्लम नहीं है पर्टिकुलरली, सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो फिर आज थोड़े से एनर्जी में लो लग रहे हैं सब। हाँ मैम, थोड़ा लेजी डे हाँ। है, वेदर एंड एवरीथिंग। चलिए तो फिर एनर्जेटिक बना देते हैं, और क्या। यस मैम। फटाफट से रैपिड फायर राउंड लगाते हैं, सब एनर्जी में आ जाएंगे, फिर आगे जो टॉपिक्स हमें पढ़ने वो अच्छे से याद रह जाएंगे सबको, है ना? चलो थोड़ा सा वार्म अप कर लो और दिमाग को फ्रेश करके यहाँ पे ध्यान दो, और मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ उसका ब्रीफली मुझे आंसर दो, ठीक है? राउटिंग क्या होती है, जल्दी से बताइए। मैम जैसे हम लोग गूगल पे नहीं रीरूट हो जाता है, मतलब सपोज एक जो हम्म, वे होता है ना, पूरा पाथ जहाँ से हाँ पैकेट जा रहे हैं हमारे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये बोल सकती हूँ इसमें सिर्फ एक टर्म ऐड कर दूं, सेंडर और रिसीवर, यस, है सेंडर ना? से रिसीवर जो जा रहा है, जो हाँ उसको पूरा पाथ है वो राउटिंग का हाँ, पाथ, वो वेरी गुड, राउटिंग। वेरी गुड। तो आपके नेटवर्क लेयर पे राउटिंग डिफाइन करने के लिए आपको राउटिंग एल्गोरिदम की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है? वो राउटिंग एल्गोरिदम हम आगे पढ़ेंगे। फॉरवर्डिंग टेबल क्या होता है? क्या होता है फॉरवर्डिंग टेबल? कहाँ यूज होता है फॉरवर्डिंग टेबल? राउटर के अंदर हमने अभी हाँ, देखा ना। डेटा पैनल के अंदर यूज हाँ, होता है, और उसके अंदर प्लेन प्लेन, इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, डेटा प्लेन, सॉरी, डेटा प्लेन। और राइट उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है दो, राइट एक तो राइट एड्रेस होता है और दूसरा एक नंबर होता राइट। है। हाँ, वो क्या होता है आपके हाँ, इंटरफेस का नंबर, कि हेडर। राउटर के जो भी आउटपुट इंटरफेस हैं उसमें से कौन सा इंटरफेस इस पर्टिकुलर हेडर के लिए अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा था एसडीएन के बारे में। व्हाट इज एसडीएन? व्हाट इज एसडीएन? फिर से साइलेंस, क्या हो गया? चलिए जल्दी से बताइए, एसडीएन क्या है? भूल गए क्या? नोट डाउन नहीं किया? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड यस नेटवर्किंग। यस, वेरी गुड। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में क्या होता है कि आपके पास एक सेंट्रली एक एंटिटी अवेलेबल होती है जो कि सॉफ्टवेयर से डिफाइंड है, और उसका यूज करके आप कंट्रोल एजेंट के थ्रू सारे राउटर्स की ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। कैसे? कि जो राउटिंग टेबल या तो फिर फॉरवर्डिंग टेबल कंप्यूट करना है, दैट इज टू बी डन बाय योर कंट्रोलर ओनली, and this controller will compute this routing table or forwarding table, and it will provide to your routers separately, and that table can be used in order to identify the route, best possible route from sender to receive, ठीक है? Okay, fine. Then after yes, we have started network layer services. उसमें आप सबको पता है कि बेसिक सर्विसेज जो है, गारंटीड डिलीवरी, डिलीवरी विद बाउंडेड टाइम डिले, फिर इन ऑर्डर डिलीवरी,
फिर मिनिमल बैंडविड्थ, सिक्योरिटी और बेस्ट एफर्ट सर्विस। ठीक है, ओके। So this is what we have discussed yesterday. Then after we have studied the router architecture. How many components we have for a router? Come on here, everything is on slide. Why this long pause? Revision is must, क्योंकि आज हमें राउटर के इनपुट पोर्ट के आगे के डिटेल्स पढ़नी है, स्विचिंग फैब्रिक पढ़ना है, आउटपुट पोर्ट पढ़ना है। तो अगर आपको इनपुट पोर्ट क्लियर नहीं होगा तो ये आगे के डिटेल आपको नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, सो देयर आर 4 कंपोनेंट्स, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, स्विचिंग फैब्रिक एंड राउटिंग प्रोसेसर। ठीक है, दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ योर राउटर। दीज आर योर इनपुट पोर्ट्स, दीज आर द आउटपुट पोर्ट्स। Here is a switching fabric and here where you are finding the routing path using the routing algorithm. Fine, okay. ये 3 जो बॉक्सेस थे वो क्या रिप्रेजेंट करते थे, किसको याद है? फर्स्ट क्या था? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, राइट, दैट इज टू बी हैपनिंग एट योर फिजिकल लेयर। जैसे फिजिकल लेयर पे टर्मिनेशन होती थी लिंक की, वैसे ही आपको यहाँ पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी। यहाँ पे क्या होता था सेकेंड बॉक्स में? वहां पे आपको मल्टीपल लिंक लेयर पे जो भी ऑपरेशन होता था, हाउ टू हैंडल द मल्टीपल लिंक्स, राइट। और थर्ड क्या था? लुकअप, कि यहाँ से इनपुट पोर्ट से डेटा अब आगे कहाँ ट्रांसमिट करना है, आउटपुट पोर्ट कौन सा यूज करके डेटा ट्रांसमिट करना है, राइट। ओके, चलिए इतना क्लियर है सबके दिमाग में। दिस इज व्हाट वी नीड। की फंक्शंस हमने कल पढ़ लिए, राइट। नाउ टुडे वी वुड बी लर्निंग अबाउट इनपुट पोर्ट डिटेल्स। कि इनपुट पोर्ट के अंदर आपके पास जब भी कोई पैकेट आते हैं या तो फिर डेटाग्राम आते हैं जिसको हमें ट्रांसफर करना है आउटपुट पोर्ट के थ्रू डेस्टिनेशन तक, उस केस में फॉरवर्डिंग अगर आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कल हमने सीखा था डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग एंड जनरलाइज फॉरवर्डिंग। ठीक है, क्लियर। तो डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि वहां पे आपके डेटाग्राम के अंदर हेडर में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जिसका यूज करके आप डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करोगे और फिर आपके डेटाग्राम को फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, so by observing the input ports now we know that the first segment we have is the line termination that is to be implemented as if your physical layer is performing the termination of your link. Similarly, here in second block we are having data link layer implementation. Like the data link layer is handling all the links that are available in your network, say for example the Ethernet. And for last block we have lookup, wherein you would be using 2 forwarding states, destination based forwarding and generalized forwarding. याद है ना सबको? ठीक है, so destination forwarding में क्या है कि you would be having IP address and based on that IP address you would identify the destination. Fine. And for generalized forwarding you would be using a set of values provided by the datagram header. So let's understand destination based forwarding where you will be having the IP address of your destination, right? So we all know that first 3 components of your input port are supposed to perform line termination, link layer processing and lookup. Fine. Now our prime concern is lookup. Lookup would ultimately give you the port through which you will be communicating to your circuit switching, right? Your switching fabric. So here the lookup is the prime operation of your router, right? It is to be performed, lookup is to be performed in order to identify the exact path to reach to your output port through the switching fabric. Okay? Here we'll be using forwarding table, of course. Why? Because your forwarding table have information about the interface connected at the output port, right? Because all those interfaces would define the different destinations. So first of all, we need to identify what is going to be the destination to which our datagrams are supposed to be received, right? So this forwarding table would be used to take the decision about your interface
through which you can send your data, right? So this forwarding table would be used by routers, and the routers would identify the output port using this forwarding table. And after finding out the output port that is linking to the destination, now you can send your datagram using the switching fabric, right? This forwarding table is supposed to be computed using two ways. हमने आगे जो डायग्राम देखा था उसमें हमने ये समझा था कि देयर आर टू वेज. सबसे पहला क्या है कि आपके जो राउटर है वो खुद ही राउटिंग एल्गोरिदम अप्लाई करके फॉरवर्डिंग टेबल कंप्यूट करेंगे. फाइन, दैट मींस योर राउटर वुड हैव routing algorithm implemented it at control plane, and through this routing algorithm we can derive the switching table that is to be located into your data plane, right? So that is the first way. Using the routing algorithm you can compute the forwarding table. The other way you can compute your forwarding table is these first of all let me mention this. Yes, these remote controllers would provide would compute first of all the forwarding table, and it would provide those tables to your routers. Fine. So this implementation of remote controller is to be done at your control plane, and they would provide this forwarding table to your router at data plane. So these two, this method is to be considered as SDN. So we are taking the help of software here. The software is going to control over all routers available in the network. Right? So your software would be defining entire network routing information, right? Two ways of implementation. First one is using the routing algorithm. You are going to compute the forwarding table. Second one is using this software support. You are going to compute the routing table, right? Okay. Fine. So now we know that we can compute the forwarding table using two ways. Routing processor, wherein you are going to use the routing algorithm. Second one is SDN, software defined networking control. Okay. In destination forwarding, we all know that once the forwarding table is computed, whether from your routing algorithm or routing processor, or it is provided by your software defined networking, in both the case, first of all, once the forwarding table is computed, it is supposed to be copied from your routing processor to your data plane, right? The data plane would be consisting of certain lines through which you can transmit. Those lines are supposed to be bus, and through this bus you can transmit or you can forward your table to your data plane, right? So these lines would be connecting your data plane to your routing processor. So using this bus, your routing processor can directly provide the forwarding table to your data plane, right? Each of the input port in your router is supposed to maintain the forwarding table in order to make the correct forwarding decision. Correct forwarding decision means what? First of all, हमें ये समझना है कि सिर्फ फॉरवर्ड नहीं करना है. हमें पता है कि राउटर के पास इनपुट पोर्ट एक होगा, लेकिन आउटपुट पोर्ट मल्टीपल हो सकते हैं. इनपुट पोर्ट भी मल्टीपल हो सकते हैं, फाइन, बट लेट्स अज्यूम फॉर सिंप्लिसिटी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स अज्यूम दैट इनपुट पोर्ट सिंगल है और आपको पता है कि ये राउटर जो है मल्टीपल रिसीवर से कनेक्टेड हो सकता है. So in that case, we might have multiple output links, right? So it's the router's job to identify the best possible connection between your input link and output link in such a way that from sender to receiver the datagram can be transmitted, right? So वो correct path identify करने के लिए आपको राउटर का जो भी लिंक है, जो भी आउटपुट लिंक है उसमें से जो आपके रिसीवर तक पहुंच के उसी लिंक को सिलेक्ट करना है, फाइन. So each of the input port need the forwarding table in order to identify the best suitable output link, right?
So here let's consider one example wherein your output port is defined based on 32-bit IP addresses, and here we are following the destination based forwarding. आप सबको पता है destination based forwarding क्या है, कि आपके पास destination का IP अवेलेबल है और उसका यूज करके आप forwarding कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हम कंसीडर करते हैं दैट we are having 32-bit IP addresses, fine, and forwarding table would have one entry for each of the possible destination. इसका मतलब ये हुआ कि 32-bit का IP एड्रेस है, तो आप सोच लो कि कितने destinations possible हैं. It is going to be in terms of some millions or something, fine. So this will give you a huge amount of addresses. So it is not possible practically to store this huge amount of address in your forwarding table, right? आप सबको पता है कि forwarding table के अंदर क्या entry रहती है? आपके पास पोर्ट की जिस आउटपुट इंटरफेस लिंक जो आपका आउटपुट पोर्ट प्रोवाइड करता है उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, उसका मैपिंग रहता है एड्रेसेस के साथ। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 32 बीट लॉन्ग आईपी एड्रेस है, तो वहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। दिस यू आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस, राइट। तो हर एक आईपी एड्रेस की एक सेपरेट एंट्री बनाना, इसका मतलब ये हो कि आपके फॉरवर्डिंग टेबल की साइज क्या होगी? It would be in millions of records, right? So in such case, आप इंडिविजुअल एंट्री स्टोर करने से बेटर है कि कोई और ऑप्शन निकालें, ठीक है। तो कोई और ऑप्शन निकालने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है। देखिए, सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल 32 बिट लेंथ है आईपी एड्रेस की, उसको हम छोटे छोटे रेंज में डिवाइड कर देंगे, और जब भी कोई डेटाग्राम आता है उसके अंदर से हमें एड्रेस चेक करना है, और वो एड्रेस जो हम चेक कर रहे हैं उसके लिए हम एक रेंज फॉलो करेंगे कि उस पर्टिकुलर रेंज में अगर आपका डेटाग्राम फॉल करता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो इंटरफेस दिया गया है फॉरवर्डिंग टेबल में, उस लिंक का यूज करके आप अपने डेटाग्राम को रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हमारे पास कितने इंटरफेस हैं, 4 इंटरफेस है। उसको हमने यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन 0, 1, 2 एंड 3। अब ये तीनों इंटरफेस के लिए हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस की रेंज डिफाइन है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 11001 000 2000 00000, फाइन। तो अगर इस रेंज से लेके इस रेंज तक अगर कोई भी डेटाग्राम के पास आईपी एड्रेस अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, लिंक इंटरफेस 0 का यूज करके डेटाग्राम को आगे रिसीवर तक भेज देंगे, ठीक है। अगर ये रेंज नहीं है और आपके जो भी डेटाग्राम रिसीव हुए हैं उसमें आईपी एड्रेस इस रेंज में फॉल आउट करता है, उस केस में हम क्या करेंगे, लिंक इंटरफेस 1 का यूज करके आपका डेटा जो है वो आउटपुट पोर्ट से सेंड कर देंगे। सिमिलरली फॉर थर्ड रेंज, एंड इफ नन ऑफ द रेंज इज आइडेंटिफाइड, इसका मतलब ये है कि ये 3 रेंज के अलावा आपका आईपी एड्रेस किसी और रेंज में फॉल करता है, तो आपके पास जो एक अदरवाइज वाली लिंक है कि अगर इन तीनों में से नहीं है तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है आपके आईपी एड्रेस का वो ये है, ठीक है। तो वहां पे हमने एक्सप्लिसिटली रेंज डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ क्या लिखा है, अदरवाइज। इफ नॉट ऑल दिस 3, then the left out portion of your remaining IP addresses, so that IP addresses can be used via your link interface. So if your IP header if your datagram header is containing IP information that falls under the otherwise category, then you are so simply going to use link number 3 from your output, ठीक है। Now here, in case you know that you are going to have a 28-bit long, 32-bit long IP address, fine. So this 32-bit long IP address, and if you are providing this long range of IP address, in that case we need to find much simpler method for this destination identification, right? So we have one small method named longest prefix matching, wherein what we are doing is, first of all, we have entire destination range, right? And whenever an IP comes to us, what we'll do is we would define one prefix. वो prefix क्या होगा
वो प्रीफिक्स ही आईपी एड्रेस ही होगा, ठीक है। जो भी आपने डेस्टिनेशन रेंज यहाँ पे प्रोवाइड की है उसको अब हम उसके ऊपर से एक प्रीफिक्स डिराइव कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यही फॉरवर्डिंग टेबल, यही डिटेल्स, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे 32 बीट्स अगर आपको कंपेयर नहीं करने हैं, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, डेस्टिनेशन का लिंक ढूंढना है। उसके लिए लिंक इंटरफेस चाहिए। वो लिंक इंटरफेस के लिए आपने एड्रेस रेंज डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन की एड्रेस की पूरी रेंज अगर आपको चेक नहीं करनी है तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये प्रोसेस थोड़ा सा सिंपलर हो जाए और फास्ट हो जाए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग, ठीक है। जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारी ये जो पूरी की पूरी रेंज हमारे पास अवेलेबल है हर एक लिंक के लिए, उसके लिए हम एक छोटा सा प्रीफिक्स डिजाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ कि वी वुड कट आउट अ फ्यू ending part of your IP address, fine, and whatever remaining string of your IP address, remaining bits of your IP address you have, that is to be considered as your prefix, ठीक है। प्रीफिक्स आप सबको पता ही है, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आप पढ़ के आए हैं, ओके। इवन दो इन डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए, इवन दो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस, ओके। So we would be identifying a prefix of your address range, fine. So whenever a datagram arrives at your input port and we are supposed to determine the output port for the same, then first job of router is to check the forwarding table entry, fine. And if your forwarding table entry for given destination address, we are supposed to use the longest prefix matching method, using which you would identify a range through which you can determine your IP address. देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे जो 4 रेंजेस थे उसको मैंने अब सिंपली, देखो यहाँ तक तो आप चेक करोगे, यहाँ तक आपकी सारे के सारे बीट्स सेम है, दैट इज आपकी रेंज की लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसमें सिर्फ पीछे के इतने बीट्स में चेंज आ रहा है, फाइन। सो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि फॉर रेंज नंबर 1 योर प्रीफिक्स इज गोइंग टू बी दिस मच अमाउंट ऑफ योर बीट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। व्हाई सो, बिकॉज द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड बोथ आर हैविंग सेम बीट्स हियर up till here, and after that your beats are changing. So similar beats are to be used to construct your prefix. Similarly अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ तक वो सेम है, yes or no, यहाँ तक पूरा का पूरा रेंज सेम है, so this can be considered as your prefix. Similarly here देखो यहाँ तक आपका डेटा सिमिलर है, so this is going to be the prefix. So now we have derived prefix for link interface 0, 1 and 2. So whenever any datagram comes to you and the IP is provided, you first need to check the prefix. इसमें से कौन सा बेस्ट सुटेबल मैचिंग प्रीफिक्स है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैकेट आता है ये, ठीक है। अब इस पैकेट के लिए शुरुआत से मैंने बीट्स को मैच करना शुरू किया, सो फर्स्ट 8 बीट्स आर मैचिंग हियर, हियर एंड हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड बाइट को मैच करेंगे। सेकेंड बाइट को मैच करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि अगेन ये तीनों की पॉसिबिलिटी है, ये तीनों के सेकेंड बाइट सेम है, दैट मीन्स नाउ यू आर सपोज टू मूव टू योर थर्ड बाइट, ठीक है। थर्ड बाइट की वैल्यू देखे 0 0 0 1, तो अगेन 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, so again we have possibility कि वो तीनों में फॉलो हो सकती है, लेकिन उसके बाद के बीच हमें चेक करनी है, दैट इज 0 1 1 0। तो यहाँ पे चेक करिए 0, ये आपके आगे के बीच आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका प्रीफिक्स है। लेकिन ये जो प्रीफिक्स है उसके साथ आप अपने फर्स्ट डेटा को मैच कर, फर्स्ट आईपी को मैच करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि फर्स्ट रेंज दैट इज फर्स्ट इंटरफेस इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब आगे के पॉसिबिलिटी चेक करके देखते हैं, दैट इज आपका थर्ड बाइट जो है
दैट इज 00011। तो देखिए इसके साथ वो रेंज मैच नहीं हो रही है, फाइन। सो दैट दिस इंटरफेस 1 इज नॉट आर यूज, नॉट ऑफ आर यूज। Similarly, go for the third range. Third range is also not applicable for this case. So ultimately, सारे के सारे बीट्स कंपेयर करने की बजाय हमने क्या किया, सिर्फ जो प्रीफिक्स हमारे पास डिराइव हुआ है, जो कि ओरिजिनल एड्रेस रेंज से ही हमने डिराइव किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स रेंज जो हमारे पास है उसको हमने कंपेयर किया और उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ इतने बीट्स मैच करने पर हमें आइडिया आ गया कि दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू लिंक इंटरफेस 0। ठीक है। सिमिलरली लुक फॉर दी अनदर एग्जांपल। देखो फर्स्ट बाइट क्या है, इट इज कॉमन टू ऑल द लिंक्स, सो द डिसीजन इज नॉट टेकन। तीनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। सेकेंड बाइट चेक करो, अगेन सेम फॉर ऑल द 3 इंटरफेसेस। तो क्या बोल सकते हो, अगेन इट्स नॉट डिसाइडेड, तीनों में से कोई भी हो सकता है। So now we'll go to the third byte. थर्ड बाइट क्या है, 0001। अगेन 0001 सबके लिए सेम है, तो आगे के बीट चेक करो 1000। तो अगेन 1000, यहाँ पे भी 1000, अब यहाँ पे भी 100 हो सकता है। Now you might be thinking that madam this packet is falling into all the ranges. सही है ना? You getting my point? Students, am I audible? Students, am I audible everyone? Yes, ma'am. केयूर क्यों इतना लो साउंड कर रहे हो? चलिए, तो ये मैं जो पॉइंट यहाँ पे बना रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आपकी 2 बाइट्स जो है उसका डेटा हर एक रेंज से मैच करता है। तो हमने क्या किया, थर्ड बाइट का डेटा चेक किया। तो थर्ड बाइट का डेटा चेक करने पे भी क्या हुआ कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यस और नो? Yes, ma'am. ओके। सो जब ऐसा केस अगर होता है तो सबसे पहला डिसीजन हमें ये लेना है कि सबसे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो है वो कौन सा मैच हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों प्रीफिक्स की लेंथ सेम है, लेकिन ये वाला प्रीफिक्स जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट मैचिंग विथ योर ओरिजिनल डेटाग्राम आईपी एड्रेस। तो जो भी आपका लॉन्गेस्ट एड्रेस होगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा जो आपके आईपी एड्रेस के साथ मैच करता है, that would be your final link interface. So yeah, here you can see that we have 000110000. So that is exactly matching with your link interface 1. So we would use link interface 1 to transmit our datagram to the destination. Clear? समझ में आ रहा है? ये बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है। शायद आपके लिए आप ये नंबर्स देख के थोड़े से कंफ्यूज हो गए हों। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। यस मैम। क्लैरिटी नहीं है, कहाँ तक समझ में आया वो बता दीजिए एक बार। देखो ये क्लियर है, फॉरवर्डिंग टेबल क्लियर है। मैम वापस से समझाओ। देखो डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग क्या होती है, पहले मुझे वो बता दीजिए। चलिए चलिए थोड़ा सा एनर्जेटिक बनिए, आंसर करिए फटाफट से। मुझे एक्चुअली पता तो चलना चाहिए कि आप कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हो, है ना? चलिए जल्दी से बताइए, डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग क्या होती है? हम इसमें हाँ, फॉरवर्डिंग टेबल यूज किया जाता है, उससे आईपी एड्रेस पता रहता है कहाँ का। आईपी एड्रेस के बेस पे आप फॉरवर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया है, उसमें मैंने आपको बताया कि आपका जो आईपी है वो 32 बीट लॉन्ग है, ठीक है। 32 बीट लॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे आपके पास पॉसिबल डेस्टिनेशन हो जाएंगे, ठीक है।
अब पॉसिबल डेस्टिनेशन इतने सारे हैं तो हर एक की एंट्री राउट आपके फॉरवर्डिंग टेबल में आपको सेपरेटली करनी है। तो अगर आप इसकी सेपरेट एंट्री करोगे तो बहुत सारी एंट्री हो जाएंगी, ठीक है ना। आप सोच लो 32 बीट का कितने वेरिएशंस आएंगे, 2⁻32। आपके पास 32 बीट पोजीशन है, हर एक बीट की कितनी पॉसिबिलिटी आपके पास, 0 या 1। सो अल्टीमेटली ईच ऑफ द बीट इज हैविंग 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इनटू 0 और 1। सो इंडिविजुअली अगर इसको गिनने जाएंगे तो इट वुड गिव यू 2⁻32 डेस्टिनेशन, और हर एक डेस्टिनेशन की सेपरेट एंट्री फॉरवर्डिंग टेबल में करेंगे तो दैट टेबल वुड बी अ वेरी ह्यूज टेबल। सो रादर देन डूइंग दिस हमने उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला, और वो सोल्यूशन है आपका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग। अभी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग कैसे काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। एज यू ऑल नो दैट वी आर फॉलोइंग 32 बीट लॉन्ग आईपी एड्रेस। इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल इज सारे एड्रेसिंग आपके पास जो प्रोवाइडेड है 32 बीट के, उसके लिए आपने रेंज डिफाइन कर दी, ठीक है। रेंज डिफाइन करने का मतलब क्या हो कि हर बार आपको वो 2⁻32 एंट्री चेक नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो रेंज प्रोवाइड की है उसको चेक करना है कि अगर इस रेंज में आपका डेटाग्राम का आईपी एड्रेस फॉलो होता है तो आप वो उसके अकॉर्डिंगली इंटरफेस को चूज करके आउटपुट पोर्ट सिलेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो ये रेंज सबसे पहले डिफाइन कर दी। इस रेंज को मैंने कैसे डिफाइन कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस टू दिस आईपी एड्रेस। अगर इन दोनों आईपी एड्रेसेस के बीच में कोई एडिशनल आईपी एड्रेस है तो दैट कैन बी फॉरवर्डेड यूजिंग लिंक इंटरफेस 0। सिमिलरली अगर इस आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस के बीच में कोई डेटाग्राम है जिसका आईपी है, यू कैन यूज लिंक नंबर 1, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और तीन रेंज डिफाइन करने के बाद जो भी लेफ्ट आउट पोर्शन है आपकी रेंज का उसको हमने लिंक इंटरफेस 3 बता दिया, दैट्स ऑल। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? मैम लेकिन ये रेंज तो एक जैसे ही है सब में। नहीं है ना बेटा, देखो मैं बताती हूँ आपको। देखो हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे फर्स्ट 2 बाइट सेम है, सेम दिख रहे हैं सबको, ठीक है। फिर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस रेंज के अंदर पर्टिकुलरली आपका थर्ड बाइट डिफरेंट है, फोर्थ बाइट भी डिफरेंट है। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड बाइट सेम है लेकिन फोर्थ बाइट पूरा डिफरेंट है। तो अगर ये एक पूरा बाइट अगर चेंज हो रहा है दैट मीन्स आपके टोटल 8 बीट चेंज हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो द रेंज इज डिफरेंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका रेंज का एंडिंग पॉइंट है। सिमिलरली अगर आप इसको फॉलो करो तो आपके फर्स्ट 2 बाइट सेम है, उसके अलावा 2 बाइट डिफरेंट है, so total 16 beats are different, so that provides you different range, right? मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज इसी में हो रहे हो कि इतने लंबा 32 बीट का आईपी एड्रेस दिया है ना, उसी में कंफ्यूज हो रहे हो, एम आई राइट? कि ये है क्या, इतना बड़ा नंबर क्यों दिया है, एम आई राइट? यस मैम। हाँ तो अब वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया? यस मैम यस। सबको हो गया ना? ऐसा किसी के दिमाग में अभी डाउट नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा डेटा क्यों है, इतना बड़ा आईपी एड्रेस तो कैसे डील करेंगे। वो विजुअली आपने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है इतना 32 बीट लॉन्ग आईपी एड्रेस, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। वी वुड वर्क अकॉर्डिंग टू द बाइट्स, ठीक है। तो आपको बीट पोजीशन गिनने की जरूरत नहीं, तो बाइट से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? एम आई मेकिंग अ पॉइंट हियर? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, थैंक यू। तो देखिए अब हमारे पास ये पूरी की पूरी रेंज अवेलेबल है। जब भी डेटाग्राम आएगा हमारा काम क्या है, इसमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन से रेंज के थ्रू आप अपना डेटाग्राम, कौन सी लिंक के थ्रू आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हर बार सोचो कि जब भी कोई डेटाग्राम आएगा उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा हर एक रेंज से, ठीक है। हर एक रेंज में आपके पास 4 बाइट्स हैं, तो क्या हम इसके लिए कोई ऐसा शॉर्टकट निकाल सकते हैं कि जिसके थ्रू हमें सारे के सारे बाइट्स को कंपेयर नहीं करना पड़े और हमारा काम जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाए? तो इसके लिए हम एक छोटी सी मेथड यूज करते हैं, उसी मेथड को बोलते हैं लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग, ठीक है। अभी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग क्या करता है बेसिकली कि आपकी जो रेंज डिफाइंड है ना,
उस रेंज के लिए वो एक प्रीफिक्स आइडेंटिफाई करता है। अब प्रीफिक्स आइडेंटिफाई करना इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा बीट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना कि जो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए सेम। तो आपने यहाँ पे अभी ऑब्जर्व किया था कि मैडम हमारे पास यहाँ पे सारे बाइट्स तो सेम है। नो नो, ऑल द बाइट्स आर नॉट सेम। आप चेक करो, फर्स्ट बाइट इज सेम, सेकेंड बाइट इज सेम, थर्ड बाइट इज नॉट सेम। तो जहां तक आपका डेटा सेम जा रहा है, अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों में जहां पे आपका डेटा सेम जा रहा है, वहां पे आप क्या करोगे, क्या करोगे आप वहां पे? प्रीफिक्स डिफाइन करेंगे। उसको हम प्रीफिक्स बना देंगे। तो प्रीफिक्स बनाने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई भी आईपी एड्रेस इस रेंज में फॉल होता है तो पीछे के बीट्स तो डिफर होंगे, लेकिन इतने स्टैटिक बीट अगर फॉलो हो रहे हैं आपके आईपी में, तो देयर आर चांसेस दैट दैट आईपी एड्रेस इज बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर रेंज। तो हमने उसको छोटा कट आउट करके एक प्रीफिक्स बना दिया, जिसका सिर्फ हर बार हमें अब प्रीफिक्स ही मैच करना रादर देन मैचिंग दी एंटायर आईपी एड्रेस। ठीक है, सिंपली देखो, लिंक इंटरफेस के लिए, लिंक इंटरफेस 1 के लिए आप देखो, फर्स्ट बाइट इज सेम, सेकेंड बाइट इज सेम, थर्ड बाइट इज सेम, बट फोर्थ बाइट इज एंटायरली डिफरेंट। तो यहाँ पे प्रीफिक्स कितना बनेगा, चलिए बताइए। मैम हेलो। हाँ, यस यस। मैम हर बार 0 की रेंज सेम ही होगी ये? जीरो की रेंज मुझे समझ में नहीं, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। मैम ये फर्स्ट रेंज है ना मैम, 110, हाँ, वो 0 के लिए सेम ही होगी हर बार? आप ये जीरोस की बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो? यस मैम, यस। देखो, मैं तो सिर्फ आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। अब आप सोच लो कि आपके पास 32 बिट लेंथ एड्रेस होने वाला है, ठीक है? तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा? ऑल द जीरोस, ठीक है? फिर all the zeros except 1, all the zeros except 2 ones, all the zeros except 3 ones। समझ में आ रहा है? आपको पहले तो ये समझना है कि आपके पास अगर 32 बीट लॉन्ग एड्रेस है तो उसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। चलिए मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर आपके पास 1 बाइट लॉन्ग डेटा है, 1 बाइट के अंदर कितने बीट होते हैं? कितने बीट होते हैं? 8 बीट। 8 बीट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास उन 8 बीट के लिए दो वैल्यूज हैं, ईदर योर बीट इज गोइंग टू बी 0 और 1। यस और नो? यस मैम। तो इन 8 बीट्स के लिए अगर आप वैल्यूज पुट अप करना शुरू करेंगे तो कहां से शुरू करोगे? 0 0 0 0 0, ऑल द जीरोस एक्सेप्ट 1, ऑल द जीरोस एक्सेप्ट 2 1। समझ रहे हो? जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, चलो आप डिजिटल लॉजिक पढ़े थे, उसमें जब भी आपको किसी भी गेट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी, ठीक है, या तो फिर आपको कोई भी, चलो ना सिंपल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना। एंड ऑपरेशन क्या था? बोथ द इनपुट शुड बी 1, देन योर आउटपुट इज गोइंग टू बी 1, राइट? तो इसका मतलब क्या, वहां पे आप क्या लिस्ट बनाते थे? आपके पास दो इनपुट थे, 0 0 0 1 1 0 1 1, याद है? तो वहां पे तो सोचो सिर्फ दो ही बीट आपके पास अवेलेबल थे, तब आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनते थे? 4। हाउ कम? आपके पास दो बीट्स हैं, हर एक बीट के लिए दो पॉसिबिलिटी है वैल्यूज के अकर होने की, दैट इज 0 और 1। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 2 दैट गिव्स यू 4। समझ रहे हो? हाँ मैम, पर हाँ, मैम मेरा क्वेश्चन ये है सिमिलरली, मैम। हाँ जस्ट अ सेकेंड, मैं एक फ्लो कंप्लीट कर लूं फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ। सिमिलरली, अगर मेरे पास 32 बीट एड्रेस है तो 32 बीट एड्रेस के लिए मेरे पास कितने टोटल कॉम्बिनेशन होंगे? 2:32। अब 2:32 के अंदर मैंने तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए एक दो रेंज लिए, प्रैक्टिकली तो ये बहुत बड़े रेंज होने वाले हैं।
आप पूछ रहे हो कि ये सारे के सारे जीरोस की पोजीशन ऐसे ही रहेगी? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने ये छोटा सा रेंज यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया है। ठीक है, आप अगर इस रेंज को चेंज करना चाहते हो तो आप फर्स्ट बीट बाइट को भी चेंज करके एक नई रेंज बना सकते हैं, बिकॉज ये डेस्टिनेशन एड्रेस की जो रेंज डिफाइन कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है कि आपको इसी तरीके से उसको डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? ये भी हो सकता है कई बार कि ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस की रेंज जो आप डिफाइन कर रहे हो ना, वो यूनिफॉर्म ना हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो अभी देख रहे हो आपकी फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे कोई रेंज बड़ी हो, कोई रेंज छोटी हो, सो देयर आर चांसेस। तो आप जो पूछ रहे हो ना बेटा कि यहाँ पे मैडम ऑल द जीरोस आर गोइंग टू बी द सेम इन लेंथ फॉर एवरी रेंज, ये चेंज हो सकते हैं, फाइन, because the way you are defining the range is going to vary. It is not going to be static every time. Am I answering your query? मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि 2:32 पॉसिबिलिटीज है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैम कि इसके साथ ही कंपेयर करना है मैम? डेटाग्राम को हम लोग कंपेयर करते हैं ना मैम, तो वही बीट्स के साथ कंपेयर करना है, वो कैसे पता चलेगा? 2:32 पॉसिबिलिटीज है तो कैसे पता चलेगा? देखो 2:32 पॉसिबिलिटीज किसके लिए बेटा? टोटल लेंथ ऑफ एड्रेस कि टोटल कितने डेस्टिनेशन हो सकते हैं। अज्यूम कर लो आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, इस नेटवर्क के अंदर आपने आपका जो राउटर है उसके साथ कितने और डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो जितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपका 2:32 एड्रेसेस आपके पास अवेलेबल कब होंगे? जबकि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। अदरवाइज तो आपको इतने बड़े आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है, या तो फिर आप इतने बड़ी रेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास बहुत सारे नोड्स होने वाले हैं, तो हर अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा नोड मेरा डेस्टिनेशन नोड है। राउटर का अभी काम ये है, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि मैडम हर बार हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेंज को कंपेयर करना है? इज इट योर क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, तो देखो उसका आंसर मैं देती हूँ अभी कि आपको ये पूरी की पूरी रेंज को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें से हर बार एक प्रीफिक्स डिफाइन करेंगे और सिर्फ वो प्रीफिक्स ही मैच होना है। और आप जब इसको सोचते हो ना कि इसको मैच करना है, दैट एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंगली वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है कि आप एक एक बीट चेक करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये सेम है नहीं है, सेम है नहीं है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर दिस इज गोइंग टू टेक fraction of nanoseconds, I would call it. ठीक है, this is going to be very fast in terms of your networking. तो आपको वो रियलाइज भी नहीं होगा और इसका कंपैरिजन जो है वो बाइट की वैल्यू का कंपैरिजन वो काफी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये फंडामेंटल हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पूरे का पूरा रेंज अगर आपको, क्योंकि रेंज के अंदर क्या करना है, पहले लोअर बाउंड कंपेयर करो फिर अपर बाउंड कंपेयर करो। ठीक है, तो उसकी वजह 2 बार कंपैरिजन करो, सारे बीच को कंपेयर करो, इसलिए हमने क्या किया, प्रीफिक्स डिफाइन कर दिया। प्रीफिक्स जितने भी आपके सेम नंबर ऑफ बीट्स हैं उसको आप प्रीफिक्स बना दो। तो हर बार आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो प्रीफिक्स का रेंज जो डिफाइन है हर एक के लिए उसको ही कंपेयर करना है। एम आई आंसरिंग योर क्वेश्चन? यस मैम। क्लियर नाउ? Yes ma'am, clear. Okay, okay. So here you can see that हमारा जो भी डेटा था, देख सकते हो आप यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा डेटा था सबसे पहले जिसके लिए हमें इंटरफेस डिफाइन करना था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट बाइट मैच कर लो, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो। थर्ड में आपको पता है कि यहाँ तक जो है सारे के सारे रेंज फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आगे के जो भी बीट्स है ना उसको कंपेयर करना शुरू करो और बेस्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट पाथ जो मिलता है दैट वुड बी योर आंसर। तो आप देखो उसके बाद कौन सा बीट है, यहाँ पे 0 1 1 0, तो अब यहाँ पे 0 है तो यू कैन हैव 1 1 1 0, लेकिन यहाँ पे 0 0 है, सो दिस लिंक इज नॉट ऑफ योर यूज। यहाँ पे क्या है, इधर 1 और 0, से अगेन यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी है,
तो बेस्ट पॉसिबल वे कौन सा है? फर्स्ट वाला, है ना? क्लियर? सिमिलरली अगर आप सेकेंड एड्रेस की बात कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास फर्स्ट 2 बाइट्स आपने कंपेयर कर लिए, और फर्स्ट 2 बाइट तो हर एक रेंज के लिए सिमिलर है, चेंज कहाँ पे आ रहा है? थर्ड बाइट के अंदर। तो थर्ड बाइट कंपेयर करना शुरू करो, व्हाट इज इट? 0 0 0 1। सो अगेन दैट पोर्शन इज सिमिलर इन ऑल द रेंजेस। तो अब हमें क्या करना है? पीछे के नंबर्स चेक करने, सो दैट इज 1 0 0 0। सो 1 0 0 0। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग, नो? ये सबसे लॉन्ग है। यहाँ पे 0 0 हो सकता है बट इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट प्रोवाइडेड, लेकिन ये तो प्रीफिक्स से लॉन्ग है, प्रीफिक्स से आपको 1000 की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, 100 की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। So that clearly shows that this is going to be, this link interface 1 is going to be the output link for your destination. Clear? अब क्लियर है? तो जब भी ऐसा कोई केस अगर होता है कि जहां पे तीनों रेंज एप्लीकेबल है या तो फिर मल्टीपल रेंजेस एप्लीकेबल है, तो आपको कौन सा रेंज सिलेक्ट करना है? द वन दैट गिव यू द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग। ठीक है? ओके, so let me take the attendance first.